Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to discuss idioms and phrases for UPSC, Punjab PCS, SSC, and various central plus state government jobs. And this is part number one. So let's start. The first is above board. Above board का मतलब होता है honest and straightforward. See, you can see the picture here. Both persons have good deal with them and both looking honest and straightforward. So above board का मतलब होता है honest and straightforward. The meaning is clear and there is a one sentence. Gandhi ji was above board, honest and straightforward and hence had nothing to hide. Okay, गांधी जी बहुत ही ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थे और वो कुछ भी हाइड करके नहीं रखते थे. So this is the meaning of above board. Second है Adam A. Look at the picture. बिकॉज इस बॉटल में आपको वाटर दिख रहा है. एडम मिल का मतलब होता है प्योर वाटर. द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट. In the remotest part of the Rajasthan, people walk miles for Adam Hill. Next है add a new feather in one's cap. एक कैप है उसमें एक feather और ऐड करना. It means to acquire a new honor or distinction. So you are already a famous person but you acquire new honor. आपको एक और नई distinction और honor मिल रहा है. So that's why the meaning of add a new feather in one cap is to acquire a new honor and distinction. Next है add insult to injury. Insult भी करना और injury भी देना. It means to harm as well as humiliate. किसी को हार्म भी करना और साथ में उसको ह्यूमिलेट भी करना. दिस इज द मीनिंग ऑफ एड इंसल्ट टू इंजरी. द सेंटेंस इज शी हैड एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय रिटर्निंग द गिफ्ट. एक तो उसने गिफ्ट को रिटर्न करके एड इंसल्टेड एंड इंजरी मीन्स एंड सेंडिंग अ मैसेज विच इज कॉल्ड द गेट लॉस्ट नोट. ओके, एक तो उसने गिफ्ट को रिटर्न किया और साथ में एक नोट भेजा गेट लॉस्ट. So this is the meaning of add insult to injury, to harm as well as humiliate. नेक्स्ट है आफ्टर वंस ऑन हार्ट. एक हार्ट जैसा दूसरा हार्ट होना. इट मीन्स सिमिलर टू यू. आफ्टर वंस ऑन हार्ट मीन्स सिमिलर टू यू. सीइंग योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट एंड लिटरेचर. आर्ट और लिटरेचर में इंक्लिनेशन मीन्स इंटरेस्ट. आई कैन से दैट यू आर क्लियरली अ पर्सन आफ्टर माई ऑन हार्ट. कि तुम्हारा आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट देख के मैं यही कह सकता हूँ कि यू आर सिमिलर टू मी. Okay, so it means after my own heart, that is similar to you. So that is the meaning. Next is an eye wash. Eye wash का मतलब होता है दिखावा. That is a pretend. The whole investigation was just an eye wash as no one was held guilty. You can see the Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh massacre in 1919. There was an investigation sent by the Britisher and Hunter Commission. तो वो सारा का सारा एक दिखावा था. बिकॉज नो वन वाज हेल्ड गिल्टी. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ आई वॉश अ प्रिटेंड. नेक्स्ट है एन हेयर ब्रेथ स्केप. हेयर के बीच में जो ब्रेथ होती है बहुत ही नैरो होती है. दैट इज कॉल्ड द वेरी नैरो स्केप. बाल बाल बचना. ही हैड अ हेयर ब्रेथ स्केप व्हेन हिज बाइक स्किड ऑन द ऑयल ड्रेंच रोड. एक रोड था उसके ऊपर ऑयल गिरा हुआ था और उसकी वहां पर बाइक स्किड कर जाती है और वो बाल बाल बचता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एन हेयर ब्रेथ स्केप मीन्स अ वेरी नैरो स्केप. नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम. ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है लॉन्ग टाइम लव. अ लॉन्ग टाइम लव इज कॉल्ड एन ओल्ड फ्लेम. ही मेट हिज ओल्ड फ्लेम इन द मार्केट yesterday but prudently avoided eye contact. Okay, but he prudently avoided eye contact. This is the meaning of old flame, that is the long time love. Next an old head on the young shoulder. An old head on the young shoulder means to be more mature than one's own age. अपनी age के comparative जल्दी mature हो जाए. Okay, mentally, not physically but mentally. He is an old head on young shoulder as he teaches physics at the university at the age of just 25.
So we can say that an old head on a young shoulder means to be more matured than one's on a age. Next है as fit as fiddle. You can see the bicep, that is a very healthy person. Fit as a fiddle means strong and healthy. He feigned illness but I knew that he was an as fit as fiddle. बहुत बीमार है but I know कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा because he is a very strong person, he is a very healthy person. So as fit as fiddle means strong and healthy. नेक्स्ट है एज्यूम ईयर्स. एज्यूम ईयर्स का मतलब होता है बहुत ही हवा में रहना. इट मीन्स टू प्रिटेंड सुपियोरिटी. जब हम ऑफिसर बनते हैं और नई नई कोई पोजीशन हेल्ड करते हैं तो इट मीन्स वी आर एज्यूमिंग इन ईयर्स टू प्रिटेंड सुपियोरिटी. आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर ही हैज एज्यूम्ड ईयर. इट मीन्स ही प्रिटेंडेड सुपियोरिटी. नेक्स्ट है एट अ स्टोन थ्रो. स्टोन थ्रो का मतलब है जितना एक स्टोन डिस्टेंस कवर कर पाता है अगर हम उसको थ्रू करते हैं. डेट इज अ लिटिल डिस्टेंस. अ स्टोन थ्रो मीन्स अ लिटिल डिस्टेंस. लाल किला इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस. जो लाल किला है वो मेरे घर से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एट स्टोन थ्रो. नेक्स्ट इज एट लार्ज. एट लार्ज का मतलब होता है भागना, एब्सकॉन्डिंग. Many terrorists at large and posing serious threat to the security of India. काफ़ी terrorists absconding में है and posing serious threat to the security of India. So that's why the meaning of at large is absconding. Next है at loggerheads. At loggerheads you can see the picture. It means a disagreement, or we can say that the meaning is to be at a strife. At loggerhead means to be at strife. So Congress is always at loggerheads with the BJP because जो कांग्रेस है उनके विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल डिफरेंट है. तो वी कैन से दैट द कांग्रेस इज एट लॉजरहेड विद द बीजेपी और टू बी स्ट्राइफ विद द बीजेपी. नेक्स्ट है एट नॉट. एट नॉट का मतलब होता है टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस. किसी को इम्पोर्टेंस ना देना, किसी की डिसरिगार्ड करना. लीडर टुडे सेट गांधी जी आइडियल्स एट नॉट. तो काफ़ी हमारे इंडिया में लीडर्स हैं जो गांधी जी के आइडियल्स हुआ करते थे, उन आइडियल्स को वो डिसरिगार्ड करते हैं, उन आइडियल्स की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं समझते. सो एट नॉट मीन्स टू डिसरिगार्ड और ट्रीट एज ऑफ नो इम्पोर्टेंस. तो लीडर टुडे गांधी जी आइडियल्स एट नॉट. नेक्स्ट है एट ऑड्स. एक तो हमने भी पढ़ा है एट लॉजर हेड इज अ डिसएग्रीमेंट एंड ऑड इज ऑल्सो कॉल्ड डिसएग्रीमेंट. मैंने यहाँ पर एक गांधी जी की पिक्चर बनाई है और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की, बिकॉज गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में डिफरेंसेस था, मीन वर्सेस एंड्स. गांधी जी हमेशा मीन्स पे फोकस करते थे और सुभाष चंद्र बोस जी एंड्स पे. तो एट ऑड्स मीन्स इन डिसएग्रीमेंट. वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज are at odds in the matter of the women reservation bill. Okay, so this is a simple sentences, but the meaning of at odds is in disagreement. Next है at sea. देखिए समुद्र के बीचों बीच जाके हम अपने आप को क्या पाएंगे, confused. To be at confused. ठीक है, to be confused, this is the meaning of at sea. He was at sea when he saw the question paper. जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा ही जस्ट वाज एट सी बिकॉज उनको कुछ भी नहीं आता था. तो एट सी का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज्ड. ओके. नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल. देखिए एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है सर्वाइल नेचर और हमेशा सर्विस में रहना. एट सर्विस. द सर्वेंट्स वर ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द रिच मर्चेंट. जो रिच मर्चेंट होते हैं उनको जो सर्वेंट्स होते हैं हमेशा उनकी सर्विस में रहते हैं एट बैक एंड कॉल. ओके. नेक्स्ट इज बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस. बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इम्प्रॉपर एंड प्राइवेट इन्फ्लुएंस. जो इन्फ्लुएंस प्रॉपर नहीं है और प्राइवेट इन्फ्लुएंस है, दिस इज कॉल्ड बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस. ही ट्राइड टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब बाय बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस. ओके. वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है बट उसकी जो हार्ड वर्क है ही जस्ट बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस. इट मीन्स वो इम्प्रॉपर है और प्राइवेट इन्फ्लुएंस है. तो बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट है बैड एग. देखिए यहाँ पर वर्ड है बैड, तो एक नेगेटिव वर्ड बन गया. इट मीन्स अ वर्थलेस पर्सन.
एक पर्सन ऐसा जिसका कोई भी वर्थ नहीं है, इट मीन्स अ वर्थलेस पर्सन, दिस इज द मीनिंग ऑफ बैड एक्ट। ऑफन अ प्रोडिगल सन, प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। ऑफन अ प्रोडिगल सन ऑफ अ रिच फादर बिकम अ बैड एक्ट फॉर द सोसाइटी। फादर उसका काफ़ी रिच है, बट उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करता है, ओके, एक्स्ट्रा वेगेंट है, एंड ही बिकम्स अ बैड एक्ट फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट है बेंडी वर्ड्स। बेंडी का मतलब होता है आर्ग्यू करना, इट मीन्स टू आर्ग्यू समवन, बेंडी। द टू नेबर usually bandy words and create a lot of nuisance, okay, nuisance का मतलब होता है शोर शराबा करना, ओके, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना। द टू नेबर्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं और काफ़ी एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब है जिस पे हम डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन और काउंट ऑन। पंजाब नेशनल बैंक का जो स्लोगन है उसमें भी बैंक अपॉन का वर्ड मेंशन किया गया हुआ है। बैंक अपॉन मीन्स डिपेंड्स ऑन। यू कैन बैंक अपॉन अस एट द टाइम ऑफ नीड, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी यू कैन डिपेंड ऑन अस, ओके। तो यू कैन बैंक अपॉन अस एट द टाइम ऑफ नीड, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बैंक अपॉन। और मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक का आप टाइटल भी देख लेना। नेक्स्ट है बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है बेचैनी, इन एंजाइटी और होल्डिंग योर ब्रेथ, ओके। Bated breath means holding your breath or anxiety. We waited for a good news outside the delivery room with the bated breath. डिलीवरी रूम के बाहर हम बहुत अच्छी न्यूज़ की से बेचैनी, अच्छी न्यूज़ की बेचैनी से हम इंतज़ार कर रहे थे। तो होल्डिंग योर ब्रेथ और एंजाइटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ बेटेड ब्रेथ। नेक्स्ट है कॉटेड रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना, ये तो बहुत ही आसान है। टू बी कॉट वाइल कमिटिंग अ क्राइम। My brother felt ashamed when he was caught red-handed reading my personal diary. Okay. नेक्स्ट है बी इन द बैड बुक्स ऑफ। यहाँ पर भी वर्ड बैड है, और बैड एक नेगेटिव वर्ड होता है, इट मीन्स आउट ऑफ फेवर। तो मीनिंग इज शी इज इन बैड बुक्स ऑफ हर पेरेंट्स एज शी वेंट टू सी अ मूवी विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, ओके। सो बी इन द बैड बुक मीन्स आउट ऑफ फेवर। नेक्स्ट है बी इन बैड ऑर्डर। बी इन बैड बुक और बी इन बैड ऑर्डर बोथ हैव सेम मीनिंग, इट मीन्स बी टू बी आउट ऑफ फेवर। अ करप्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन द बैड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट इस पे आता है बी इन गुड बुक। बी इन गुड बुक्स मीन्स इन अ काइंड फेवर, तो ये उसका ऑपोजिट हो गया। टू बी इन अ काइंड फेवर, शी इज इन गुड बुक्स ऑफ हर एम्प्लॉयर एज शी इज अ वेरी एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग। और नेक्स्ट है बी इन अ गुड ऑर्डर, तो बी इन गुड ऑर्डर भी बी इन गुड बुक जैसा हो जाएगा, इट मीन्स टू बी इन गुड फेवर। एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन अ गुड ऑर्डर ऑफ द पब्लिक, ओके। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। बैड बुक एंड बैड ऑर्डर बोथ मीन आउट ऑफ द फेवर, एंड गुड बुक एंड गुड ऑर्डर मीन्स टू बी इन अ गुड फेवर, ओके। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट means who is a driver, or we can say that to take the whole responsibility, who is fully responsible for any work, this is the meaning of be in the driving seat. So यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया, रमेश इज द एल्डेस्ट सन एंड सो इज ही इज इन द ड्राइविंग सीट आफ्टर हिज फादर्स डेथ। नेक्स्ट है बेयर द पाम। बेयर का पाम मीन्स टू बी विक्ट्रियस। यू कैन सी यहाँ पर एक बॉय है जो फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, टू बी विक्ट्रियस, दिस इज द मीनिंग ऑफ अ बेयर द पाम। अवर स्कूल बोर द पाम इन द डांस कॉम्पिटिशन हेल्ड एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके। तो ये थे idioms एंड phrases फॉर द वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स लाइक यूपीएससी, पंजाब पीसीएस, एसएससी एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, पार्ट नंबर 1, okay। So this is for today in this video. Thank you and take care.